So we'll try to understand what these wrapper classes are. So before that, I want to ask you, what is immutable class? What is immutable class? Anyone knows? And how do we create that? Once we create an object of that class, we cannot modify the content of that particular object. Once object of बोल सकते हो object of immutable class are not modifiable. We cannot modify the object once it is created. And how do we create immutable class? We can create an immutable class make variables private and final, then do not provide public setter methods, then make the class final. ऐसे बनाते हैं, right? Okay. Now what wrapper classes are? अगर आपको कोई पूछता है कि what are wrapper classes? So wrapper classes, what are wrapper classes? These are set of classes which are these are concrete classes. These are set of concrete classes, concrete immutable classes. How these are? Concrete immutable classes which are defined in java.lang package. कहाँ पर present ये? Lang package. These are concrete classes and which are immutable class, which are predefined. Now what these classes are? For every corresponding primitive data type, there is a corresponding class created. So why these classes created? So wrapper classes are created in order to convert a primitive value into object format and vice versa. Why these are created? To convert your primitive value into object format. That's the reason, right? Now wrapping an primitive or ऐसे बोल सकते हो converting a primitive value into object format is called as auto boxing. क्या बोल रहे थे उसे? Auto boxing. And converting wrapper class object into primitive type is called as unboxing. Now what are the classes? There are different classes. Every wrapper class contains two set of methods. Every wrapper class contains two set of methods. Value of type of. We'll see what these methods are doing.
So I will see for primitive type byte. So what is a primitive type? And corresponding wrapper class. So byte corresponding wrapper class is byte. Short, we have corresponding class as short. Then we have int, we have integer class. Long, we have capital long. Then for float, we have capital float. For double, we have double. For char, we have character. For boolean, we have boolean. These are the corresponding classes. अब देखते हैं इनको कैसे यूज कर सकते हैं. विल ट्राई टू यूज दिस क्लासेस. सबसे पहले देखते हैं बाइट क्लास. लेट्स गो हियर. Now I have this, let's say int a equal to 100. Now this is a primitive value. This is a primitive value. Now integer. If you see this integer, this is a predefined class which is present inside the java.lang package. This is a java.lang package, and it holds some minimum value, max value for integer, range, and lot of methods are there. If you see their methods, we have to string, to unsigned string, to hex string, to octal string, to binary string, parse and value of double value. There are n number of min, max, reverse. There are n number of methods are there. So we'll try to use some of the methods. Integer I equal to a. So what is happening here? So this is called as auto boxing. It's called as auto boxing. In this, automatically this primitive value is converted into an object format. So it is going to create an object. It is going to create an object. Now I say int b equal to I. This is called as auto unboxing. This is called as auto unboxing. Auto boxing means convert primitive to wrapper. Auto unboxing, convert wrapper to primitive. Convert a wrapper to primitive. Now let's see some of the examples. Now मैं सारी values यहाँ पर print करता हूँ. A, I and B. सबकी values आपको पता होगा सेम ही आने वाली है. 100, 100 and 100. क्यों टाइम ले रहा है इतना? ओके 100, 100 सारी 100 वैल्यूज. ये सिंपल आपका बॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग. क्लियर ये वाला सिंपल सा कॉन्सेप्ट. यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट लाइक दिस ऑल्सो. मतलब आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो. आई विल क्रिएट दैट ऑब्जेक्ट. सो इंट आई इक्वल टू 10 और आप यहाँ पर इंटीजर इक्वल टू न्यू इंटीजर और इसके कंस्ट्रक्टर में आप वैल्यू भी दे सकते हो.
लाइक दिस। आप इंटीजर वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रक्चर के अंदर आपने वैल्यू दी है, सो यू हैव गिवन दिस वैल्यू। हमने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू दी है, यहाँ पर आप बाइट दे सकते हो, शॉर्ट दे सकते हो। इफ आई राइट दिस एज बाइट ऑल्सो दैट विल ऑल्सो वर्क। बाइट दे सकते हो, शॉर्ट दे सकते हो। यहाँ पर लॉन्ग चलेगा क्या? लॉन्ग नहीं चलेगा। क्यों? आपको पता होगा कि विल टॉक अबाउट दैट, ये भी कैसे कर सकते हैं। अभी बाइट शॉर्ट इन की वैल्यू तो उसके एज अ पैरामीटर दे सकते हैं, लॉन्ग की नहीं दे सकते आप, फ्लोट की नहीं दे सकते। अभी लेट से मेरे पास कोई एक फ्लोट वैल्यू है, आई हैव सम फ्लोट वैल्यू, फ्लोट, और यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं फ्लोट वैल्यू इक्वल टू 100.30 f इज द फ्लोट वैल्यू, इज द फ्लोट वैल्यू। अब मुझे इस फ्लोट वैल्यू को कन्वर्ट करना है इंटीजर में, इंटीजर रैपर में। किस में कन्वर्ट करना है? इंटीजर। तो इंटीजर, इंटीजर 2 इक्वल टू न्यू इंटीजर। अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू दे सकता हूँ क्या? मैं डायरेक्टली फ्लोट वैल्यू नहीं दे सकता, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम? व्हाट वी विल डू, फ्लोट को इसमें कन्वर्ट करना है मुझे, इंटीजर में। कैसे करोगे आप? टाइप कास्टिंग कर सकते हो आप, कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो मुझे वैसे नहीं करना है, मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है आपको इंटीजर में। कैसे करेंगे हम? ये तो कंपलसरी वैल्यू मांग रहा है इधर तो, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर यूज कर सकते हो फ्लोट डॉट ठीक, वी विल टॉक अबाउट दैट। पहले मेथड्स देख लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट दिस कन्वर्जन, ठीक है। सो देयर आर सिचुएशंस, फ्लोट को इंटीजर में, फ्लोट को डबल में, स्ट्रिंग को डबल में। अब मुझे यहाँ पर मैं दे रहा हूँ एक स्ट्रिंग वैल्यू, आई एम गोइंग टू गिव अ स्ट्रिंग वैल्यू। क्या दे रहा हूँ मैं? स्ट्रिंग 100। मैंने इनपुट क्या दिया? स्ट्रिंग। नाउ दिस स्ट्रिंग विल बी कन्वर्टेड एज अ इंटीजर, दिस स्ट्रिंग विल बी कन्वर्टेड एज इंटीजर। सो इंटीजर 2 डॉट 200। आपको यहाँ पर एक और, अभी ये आपको रेफरेंस मिल रहा है, तो रेफरेंस का यूज करके आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है। यू गेट अ मेथड सपोर्ट ऑल्सो, यूजिंग दिस वी गेट अ मेथड सपोर्ट, यूजिंग रैपर क्लासेस we get method support as well, using wrapper classes we get method support as well। देखो 103, उसको 200 प्लस किया हमने, 300 बना, तो स्ट्रिंग को हमने कन्वर्ट किया इसमें, राइट। नाउ इंटीजर क्लास, जैसे बाइट क्लास है वैसे शॉर्ट क्लास है, इंटीजर भी क्लास है। अब मेरे पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू, मैंने उसको कन्वर्ट किया इंटीजर में। अब मेरे पास ऐसा कोई बाइनरी, मुझे क्या करना है, मेरा डेसिमल वैल्यू, उसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में या डेसिमल का बाइनरी में। सो आई हैव दिस नंबर, लेट्स से 200, मुझे क्या करना है, इस 200 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। सो इंटीजर डॉट टू बाइनरी स्ट्रिंग, तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ लेट्स से 100। तो इसमें क्या होगा, सो इंटीजर डॉट किसमें कन्वर्ट हो जाए ना, बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पर। अब मुझे सेम स्ट्रिंग को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 ऑक्टल स्ट्रिंग। अब मुझे सेम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है उसको, तो उसके लिए लॉजिक ऑलरेडी लिखा है, राइट। तो यहाँ पर लिखना है बस 2 हेक्स स्ट्रिंग।
100 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ऑक्टल में, इसमें कर रहा हूँ। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, आप रेंज दे सकते हो, मैक्स ऑफ 2। विल टॉक अबाउट दिस मेथड, रिवर्स विल टॉक अबाउट दिस। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको कोई डेसिमल नंबर है उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में या ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, तो आपके पास रेडीमेड मेथड सपोर्ट है। दीज आर स्टैटिक मेथड, दीज आर स्टैटिक मेथड्स। क्लास नेम से एक्सेस कर रहे हैं हम, राइट? सो दीज आर स्टैटिक मेथड्स। ठीक, ये कन्वर्जन आपका 1100 100, ऑक्टल में 144, इसमें 64 आ रहा है। सिंपल। और देयर आर सम कपल ऑफ अदर मेथड्स आल्सो वी हैव। मेरे पास कोई इंटीजर है वैल्यू, ठीक। अब देखो ये रेफरेंस वेरिएबल, ये क्या है? रेफरेंस वेरिएबल। तो आपके पास इतनी सारी मेथड सपोर्ट आ रही है। सिंस दिस इज अ रेफरेंस, सो यू गेट अ लॉट ऑफ मेथड सपोर्ट एज वेल, राइट? तो आपके पास फ्लोट वैल्यू है, बाइट वैल्यू है, टू स्ट्रिंग, डबल वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? इंटीजर फ्लोट वैल्यू। तो आपको मिलेगा ये फ्लोट वैल्यू। सो इसमें क्या हुआ? इंटीजर टू फ्लोट, इंटीजर डॉट, आपको बाइट वैल्यू कन्वर्ट करना है उसको, इसको किस में कन्वर्ट किया? इंटीजर टू बाइट। सिमिलरली आपके पास इंटीजर डॉट शॉर्ट वैल्यू, ये कन्वर्ट किया इंटीजर टू शॉर्ट। सिंपल। सिमिलर आप डबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इंटीजर डॉट डबल वैल्यू। तो हर एक डेटा टाइप के लिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है। तो इंटीजर टू डबल, ये ऑप्शंस आपको आ रहा है। इंटीजर डॉट, देखो यहाँ पर हैश कोड मिल सकता है, लॉन्ग वैल्यू कर सकते हो आप, यू गेट अ लॉन्ग वैल्यू। इंटीजर टू ठीक, इंटीजर टू लॉन्ग वैल्यू। तो आपके पास ये ऑप्शंस है, वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो आप ये सारी वैल्यूज प्रिंट कर सकते हो। सो यू कैन प्रिंट फ्लोट वैल्यू। मतलब आपने क्या कन्वर्ट किया? एक इंटीजर को डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप में कन्वर्ट किया। so आपके पास बाइट वैल्यू है, शॉर्ट वैल्यू कन्वर्ट किया उसको, देन वी हैव डबल वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू। ये आपने ऐसे कर दिया। सो गिवन इंटीजर को आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने किस में कन्वर्ट किया? प्रिमिटिव में। सो कन्वर्टिंग वन फॉर्मेट इनटू अनदर फॉर्मेट, ये भी आप कर सकते हो। सी हियर, सो फ्लोट डबल कन्वर्ट हुआ। सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट। नाउ देर आर सम मोर थिंग्स आर देर। अब मेरे पास कोई इंटीजर है, इंटीजर में बहुत सारी स्टैटिक मेथड्स भी आपके पास। यहाँ पर टू हेक्स स्ट्रिंग, टू ऑक्टल स्ट्रिंग, टू बाइनरी स्ट्रिंग, ये कन्वर्ट करता है मैक्स वैल्यू। तो ये स्टैटिक वेरिएबल हो गया। दिस इज अ फील्ड, दिस आर fields, value of bit count, you can divide as get integer, highest, mean, max, reverse, बहुत सारी चीज़ है। इट्स ए रिवर्स। रिवर्स देखते क्या है करता है ये?
तो लॉजिक लिखाइए, व्हाट दे हैव एक्चुअली डन, रिवर्स। There are a lot of static methods, instance methods, which are helping you to perform different operations. Reverse, ये क्या reverse है? ये क्या है? Reversed. What do you mean by reversed? 1 2 3 4 5 का रिवर्स ऐसा होता है क्या? बिटवाइज उसने रिवर्स किया, उसने बिटवाइज रिवर्स किया। क्या किया उसने? बिटवाइज। इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी यू विल गेट दैट। ठीक, अब मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग है, आई हैव सम स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है मुझे, तो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, मेरे पास स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया मैंने, उसको जो भी वैल्यू था आपका उसको इंटीजर टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। स्ट्रिंग टू इंटीजर भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर पॉसिबल वैल्यू वही होनी चाहिए। स्ट्रिंग वैल्यू या इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में किया, स्ट्रिंग का इंटीजर में भी कर सकते, लेकिन वहाँ पर पॉसिबल क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। ठीक, ये हो गया अनदर सेट ऑफ मेथड्स। Now there are some other methods also. मैंने आपको पार्स का बोला था, वैल्यू ऑफ मेथड तो मैंने आपको बोला। वैल्यू ऑफ मेथड किस चीज के लिए यूज होता है? वैल्यू ऑफ, सो देखो यहाँ पर फर्स्ट आपने कन्वर्ट किया उसको ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग, उसके बाद आपने उसको बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, देन आपने क्या किया? वैल्यू एक्स वैल्यू, मतलब इंटीजर को बाइट में कन्वर्ट किया, शॉर्ट में कन्वर्ट किया, बहुत सारी चीज़ें। राइट, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग दे सकते हो या दूसरा कोई वैल्यू दे सकते हो। लेट्स से यहाँ पर 1 2 3 दे रहा हूँ मैं, तो ये क्या कर रहा है? वैल्यू ऑफ मेथड इज गोइंग टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग और अ प्रिमिटिव वैल्यू, स्ट्रिंग और प्रिमिटिव, एंड कन्वर्ट इनटू इंटीजर रैपर। कन्वर्ट इनटू इंटीजर रैपर। ठीक, नाउ आपने दूसरी एक और मेथड देखी होगी, इंटीजर डॉट पार्स, इंटीजर डॉट पार्स। पार्स इंट यहां पर मैं दे रहा हूं 1 2 3। व्हाट डू यू मीन बाय पार्सिंग? व्हाट इज पार्सिंग एंड वैल्यू ऑफ? वैल्यू ऑफ देता है आपको एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके देता है इंटीजर रैपर में, एंड ये कन्वर्ट्स करता है स्ट्रिंग टू पार्सिंग। हमने बहुत सारी मेथड्स देखी होगी, हमने जब वैल्यू एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया था। पार्स इंट क्या करता है? कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग इनटू अ प्रिमिटिव फॉर्मेट, पर कन्वर्ट्स अ प्रिमिटिव। इंटीजर डॉट पार्स इंट मतलब इंटीजर में, इंटीजर की पार्स इंट मेथड मतलब क्या करेगा? वो स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करने वाला है? पार्सिंग मतलब प्रिमिटिव, किस में? इसमें। सिमिलरली मेरे पास कोई फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, तो यहाँ पर भी लेट से 1 2 23 है, ये किस में कन्वर्ट करेगा? पास्ट फ्लोट। आप इसको प्रिंट कर सकते हो, प्रिमिटिव इंटीजर। सिमिलरली पार्स्ट फ्लोट, हर एक इसमें आपको वैल्यू एक मेथड मिलेगी पार्स, पार्स फ्लोट। बाइट में क्या मिलेगी? पार्स बाइट। शॉर्ट में कौन सी मिलेगी? पार्स बाइट, पार्स शॉर्ट, पार्स इंट, लाइक दिस। सो विल हैव मेथड्स, डिफरेंट पार्सिंग मेथड्स। तो इंटीजर में कौन सी मेथड होगी? पार्स एक्स बोल सकते हैं सीधे सीधा सबके। तो आपके पास बाइट, पार्स बाइट है, पार्स शॉर्ट है, पार्स इंट मेथड है, देन पार्स लॉन्ग है, राइट, पार्स फ्लोट है,
पार्स डबल है, पार्स कैर है, लाइक दिस। कन्वर्ट कर दिया उसने, यस। सो वैसे ही आप बुलियन में जाओगे, बुलियन डॉट पार्स बुलियन, यहाँ पर वैल्यू दे दिया ट्रू। राइट, तो मतलब स्ट्रिंग को डिफरेंट डिफरेंट प्रिमिटिव में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज पार्सिंग। पार्सिंग मतलब कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग इनटू प्रिमिटिव फॉर्मेट। सिंपल। आपके पास क्या क्या है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड बुलियन। बहुत सिंपल है, यू कैन इजीली एक्सप्लोर दिस सेट ऑफ प्रीडिफाइंड क्लासेस। तो वैसे आपके पास कैरेक्टर भी है, कैरेक्टर, न्यू कैरेक्टर। तो आपके पास अभी एक सिंगल कैरेक्टर है, या स्ट्रिंग भी दे सकते हो आप। स्ट्रिंग नहीं चलेगा यहाँ पर, सिंगल कोड दे सकते हो ए। तो यहाँ पर क्या कन्वर्ट किया आपने, वैल्यू ऐसे दिया, आप ऐसे क्या सी एच भी कर सकते हो, सी एच सिंगल कोट ए, और इसको भी डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो आप, कैरेक्टर 2। ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस, ऑटो बॉक्सिंग। व्हाट इज दिस, ऑटो अनबॉक्सिंग। ठीक, ऐसे भी कर सकते हो। कैरेक्टर डॉट, बहुत सारी मेथड्स हैं, कोड पॉइंट ऐड, इज डिजिट, आपने देखा होगा मेथड्स, इज डिजिट, इज, there are a lot of things, is space char, is title case, is little case, white space, is white space, is uppercase, to uppercase, value of, to string, decimal digit, करेंसी सिंबल, डैश, बहुत सारी आपके पास ऑप्शन, लेटर नंबर, लाइन सेपरेटर, लोअर केस, बहुत सारे शॉर्ट उन्होंने क्या किया है, कॉन्स्टेंट्स बना के रखा, दीज आर लॉट ऑफ डिफरेंट्स। तो अभी यहाँ पर मैं कुछ बना रहा हूँ, मुझे पता करना है कि कोई पर्टिकुलर यूजर ने कैरेक्टर दिया, उसको मुझे चेक करना है ये डिजिट है कि नहीं। तो हमने उसके लॉजिक लिखा था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी आपको दे दिया, कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, इज डिजिट, तो मैं यहाँ पर ए देता हूँ। ये लॉजिक उन्होंने पहले से डिफाइन किया, दिस लॉजिक दे हैव डिफाइंड। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स देगा ये, दिस गोइंग टू रिटर्न फॉल्स। ऐसे बहुत सारी मेथड्स, प्री डिफाइंड कोड है आपके पास, सो यू गेट द मेथड्स ऑफ फॉल्स। अब मुझे पता करना है कि कोई कैरेक्टर इज टाइटल केस, इज अल्फाबेटिक, इज अल्फाबेटिक। अब मैं यहाँ पर 1 दे रहा हूँ, व्हाट विल हैपन, फॉल्स देगा ये। इज इट अल्फाबेट, इज इट अ डिजिट, इसके लिए लॉजिक आप खुद लिख सकते हो, लेकिन आपके पास यहाँ पर भी लॉजिक डिफाइंड है, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। ये यहाँ पर भी फॉल्स बोल दिया उसने। तो कैरेक्टर देखो यहाँ पर, कैर पॉइंट, कोड पॉइंट ऐट, मतलब उसका आस्की वैल्यू चेक करना चाहते हो आप कर सकते हो। गेट नेम, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, गेट टाइप, हैश कोड, इज डिफाइंड कैरेक्टर, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, इज लेटर और डिजिट, इज लोअर केस, इज लोअर केस, ऐसी बहुत सारी मेथड्स हैं। दीज आर, जैसे जैसे आपकी ज़रूरत होगी वैसे वैसे आप मेथड्स एक्सप्लोर करोगे। ठीक, सिंपल। एनी क्वेरीज ऑन दिस टैपर क्लासेस? कुछ नहीं है, सिंपल सी प्रीडिफाइंड क्लासेस है,
using which we can convert some primitive into wrapper format, मतलब object format, और convert that object into primitive format. तो हर एक primitive के लिए corresponding आपका क्लास डिफाइन किया है, एंड ऑल ऑफ दीज क्लासेस आर सच इम्यूटेबल, मतलब एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसका चेंज आप नहीं कर सकते. एंड दे आल्सो प्रोवाइड लॉट ऑफ मेथड्स टू कन्वर्ट वन फॉर्मेट इनटू सम अदर फॉर्मेट. इट्स ए इंटीजर है, उसको फॉर्मेट बाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, शॉर्ट में, इंट में, लॉन्ग में, या आपका फ्लोट, डबल, इसमें कन्वर्ट कर सकते हो. या कोई स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग को आप उसमें पार्स कर सकते हो, या इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो. प्रिमिटिव में मुझे कन्वर्ट करना है कोई स्ट्रिंग, तो प्रिमिटिव में string convert करना है. So I want to convert a string into a primitive format. So how do we do that? Parse. और मुझे इंटीजर में रैपर में चाहिए होगा तो वैल्यू ऑफ. स्ट्रिंग को रैपर में करना है तो वैल्यू ऑफ, और प्रिमिटिव में चाहिए होगा स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव, क्या है आपके पास? पार्स. सिंपल सा, बस आई विल जस्ट राइट दैट. क्या है? स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव, क्या मेथड आपके पास? पार्स xx string to wrapper, then we have value of. That's it. If you remember this, rest of things are fine. Clear? Okay. Now one last thing we'll discuss for this. Anyone knows what are enums? इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर हमने देखा है. डिड वी सी इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर? यस. इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या चेक करता है? वेदर दिस रेफरेंस इज ऑफ पर्टिकुलर टाइप और नॉट. क्या बोल रहा हूं मैं? चलो लेट मी टू दैट. इंस्टेंस यहाँ पर मैं कोई क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, पेरेंट, एंड देयर आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर क्लास मेन के अंदर क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट. ठीक है. नाउ आई क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट न्यू पेरेंट, and I have another object child equal to new child. Now I want to check whether this parent instance of whether is an instance of child, whether this reference of type child. चलो यहाँ पर देखो. So what instance of operator does? It checks whether this reference is of given type or not. Whether this reference is of given type or not. क्या आएगा यहाँ पर? False. This will be false. This one true. This one true. Perfect. False, true, true, true. सिंपल. अब इसका यूज कहाँ पर होता है? आई विल जस्ट सिंपली टेल यू. अब मेरे पास एक मैसेजिंग सर्विस है. क्या कर रहा हूँ मैं? एक इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूँ मैं. मैसेज सर्विस. क्या कर रहा हूँ मैं? मैसेज सर्विस एक इंटरफेस है, और यहाँ पर एक मेथड बना रहा हूँ मैं, void send message. ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. और यहाँ पर मैं मल्टीपल क्लासेस बना रहा हूँ. मैसेज टेस्ट.
और यहाँ पर मैं मल्टीपल क्लासेस बना रहा हूँ. आई एम गोइंग टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस. क्लास व्हाट्सएप service implements message service. Okay, so I am sending WhatsApp. Similarly, I will create 2-3 classes. SMS service, sending SMS. और इसको मैं बोल रहा हूँ ईमेल सर्विस. सेंडिंग ईमेल. ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ. मैसेज सर्विस व्हाट्सएप, गो टू न्यू, SMS ईमेल, और यहाँ पर यूज कर रहा हूँ मैं SMS सर्विस. क्लियर है? 3 क्लासेस बने, तीनों का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया. और यहाँ पर मुझे चेक करना है. ओके, so I'm going to create a method called as check message, और इसे मिलने वाला है WhatsApp. तो एक मेथड क्रिएट करने वाला हूँ मैं. ओके, और ये एक्सेप्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप मैसेज सर्विस. अब मुझे क्या चेक करना है? एक सिंपल सा स्विच लिख रहा हूं मैं यहां पर. यहां पर नहीं कर सकता मैं. इफ अगर मेरा मैसेज सर्विस व्हाट्सएप है तो मुझे वहां पर लिखना है कि मैसेज सेंड थ्रू व्हाट्सएप, मैसेज विल बी सेंड थ्रू व्हाट्सएप, ऐसे कुछ मुझे बताना है. तो कैसे करेंगे हम? क्या है? लेकिन आ नहीं रहा मुझे. क्यों? क्योंकि मैंने ये सारे क्लासेस डिफाइन करे थे यहाँ पर. तो मैं इनको स्टैटिक क्लासेस बना देता हूँ, क्योंकि एक मेथड में क्लास डिफाइन किया उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते आप. राइट, तो यहाँ पर व्हाट्सएप सर्विस, देन आप बोल सकते हो मैसेज विल बी सेंड थ्रू व्हाट्सएप. अब इस मेथड को देख के समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट आ सकता है. इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है. व्हाट्सएप आ सकता है, SMS आ सकता है. अगर मैसेज यहाँ पर आता है SMS सर्विस का, तो हम बोलेंगे मैसेज विल बी सेंड थ्रू SMS. अगर ये आता है ईमेल का, हम बोलेंगे मैसेज विल बी सेंड थ्रू ईमेल. दैट्स इट. देखो यहाँ पर टेस्ट करते हैं इसको. हमने क्या भेजा इसको? व्हाट्सएप. तो वहाँ पर क्या चेक होगा? पहले तो चेक होगा कौन से टाइप का है. तो वहाँ पर मैसेज विल बी सेंड थ्रू व्हाट्सएप. ऐसे हम चेक करें कि मैसेज किसके थ्रू जाने वाला है. आपको किसी ने रेफरेंस दे दिया, उसको रेफरेंस को पता करके चेक करना ये मैसेज कैसे जाने वाला है, हाउ इट इज गोइंग टू बी. तो दिस इज वन ऑफ द यूज केस, बहुत ज़्यादा यूज होता है. मैसेज विल बी सेंड थ्रू व्हाट्सएप. अगर मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ SMS, तो ये जाएगा
assets. ठीक है, समझ रहे हो? यूज ऑफ इंस्टेंस ऑफ, दिस इज डेडिकेटेड यूज ऑफ इंस्टेंस ऑफ. ठीक है. हाउ डू वी क्रिएट कॉन्स्टेंट्स? हाउ डू वी क्रिएट कॉन्स्टेंट्स? कैन यू टेल मी? Can you tell me how do we create constants? कॉन्स्टेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं? तो आप पहले तो उसको बनाओ पब्लिक स्टैटिक फाइनल, और यहाँ पर बोल सकते हो माई सिक्वल यूजर नेम इक्वल टू रूट, स्ट्रिंग होना चाहिए ये, रूट माई सिक्वल पासवर्ड रूट एंड माई सिक्वल URL. कुछ भी URL हो सकता है, लेट्स से लोकल होस्ट कोलन 8080. अब ऐसे हम कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं. दिस इज वन ऑफ द कॉन्स्टेंट्स वी क्रिएट. ठीक. Now there is alternate way is also there. We use something concept called as enum. We use some constant called as enum. तो यहाँ पर मैं कुछ, यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है enum. क्लास इंटरफेस हमें पता है enum. I'm going to create enum. Let's say days. So यहाँ पर मैं कुछ enum लिखने वाला हूँ. So what enum is actually, it is a type of a class. मैंने वहाँ पर क्लास क्रिएट किया, क्या क्राड क्लास, और उसमें ऑप्शन सेलेक्ट किया क्लास इंटरफेस और enum. तो दैट इज अ टाइप ऑफ क्लास. अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कुछ मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे and Sunday. Now what are these actually? These are kind of constants. Enum constant ordinal. ये क्या है? Set of constants create किया मैंने क्या किया? Set of constant. इसके अंदर आप main method भी लिख सकते हो आप. Sorry, it is not allowed here. हाँ, ठीक है. सेमीकोलन दे दिया मैंने. अभी मेरे सारे कॉन्स्टेंट्स डिफाइन किए मैंने. अब यहाँ पर मेन मेथड भी लिख सकते हो आप. क्यों? दिस इज अ क्लास, दिस इज अ क्लास. और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेज डॉट मंडे, डेज डॉट मंडे. मंडे क्या हो गया? कांस्टेंट वैल्यू. तो एज इट इज आपका वैल्यू वहाँ पर प्रिंट होने वाला है. सो दिस काइंड ऑफ अ कांस्टेंट यू हैव क्रिएटेड, डेज डॉट मंडे. तो यहाँ पर क्या डेज में से कौन सा वैल्यू? सेट ऑफ वैल्यूज, सेट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज आपने क्रिएट किया. दिस इज आल्सो यूज मंडे. देखो राइट. ये कहाँ यूज होता है? कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करना है बेस्ड ऑन द डेज यू डिफाइन दैट. ये आपका प्रोफाइल्स हो गया, अपने बहुत जगह पे यूज होने वाला है इसका. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. ऐसे हम इनम डिफाइन करते हैं. सो दीज आर ऑल कांस्टेंट, दीज आर ऑल कांस्टेंट्स. ये क्या है सारे आपके कांस्टेंट्स, इनम कांस्टेंट. ये क्लास है, क्लास के अंदर ये सारे ऐसे इस तरीके से कांस्टेंट्स आप डिफाइन कर सकते हो. इसके अंदर मैंने मेन मेथड भी लिखा है. सो यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज इनम. It is a type of a class which is used to define a set of constant values. It is used to define some constant values. क्लियर है कैसे चल रहा है ये? कैसे वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं? कॉन्स्टेंट, जैसे क्लास नेम डॉट फील्ड का नाम. सो दीज आर ऑल सेव प्री डिफाइंड सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स. इस तरीके से भी हम कॉन्स्टेंट्स क्रिएट कर सकते हैं. Any other queries?
एक और लास्ट कॉन्सेप्ट है, आई विल एक्सप्लेन दैट. ellipsis हो गया ना, ellipsis is done, right? Now I'm going to create a class, let's say data processor. डेटा टाइप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है दिमाग में, वी कैन डायरेक्टली स्पेसिफाई डेज में भी. और यहाँ पर जो भी इनपुट आने वाला है, नो आई एम नॉट श्योर व्हाट टाइप ऑफ इनपुट इट माइट गेट. क्या बोल रहा हूँ मैं, ये इनपुट का टाइप मुझे पता नहीं है, इसमें कुछ भी आ सकता है, बाइट आ सकता है, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट. तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आपके पास, इनपुट का टाइप लिखना पड़ेगा आपको, राइट. लेकिन यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हो ऐसे, इससे काम चल जाएगा, यस. इससे काम चल जाएगा, यस, इट विल वर्क. बट मुझे ऐसे हार्ड कोड हो रहा है, अभी ये ऑब्जेक्ट में सेट हो रहा है. सो व्हाट आई वांट, दिस पर्टिकुलर थिंग आई वांट डायनेमिकली. इसका टाइप क्या हुआ, एक्स, आई डोंट नो. एक्स मतलब यहाँ पर कोई भी टाइप आ सकता, उसको मैंने अभी बना दिया जेनरिक. सो आई हैव मेड दिस मेथड एज अ जेनरिक मेथड. मैंने क्या किया, इसको जेनरिक मेथड बना दिया. सो आई कैन पास एनी टाइप ऑफ इनपुट टू दिस पर्टिकुलर मेथड. एक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी टाइप, इट कैन बी एनी टाइप. सो यहाँ पर मेन मेथड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, और मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ डेटा प्रोसेसर. और अभी यहाँ पर मैं बना रहा हूँ डेटा प्रोसेसर इक्वल न्यू डेटा प्रोसेसर, ऑब्जेक्ट बना दिया डेटा प्रोसेसर डॉट प्रोसेस. अभी ऑब्जेक्ट आपने देखा होगा मेथड का फॉर्मेट, ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो वहाँ पर. ये कौन सा टाइप का डेटा एक्सेप्ट करने वाला है, ऑब्जेक्ट. क्या टाइप का, ऑब्जेक्ट. कोई भी पास करो तो आप चल जाएगा उसके अंदर, 100 पास करो या स्ट्रिंग पास करो चल जाएगा, या आप बूलियन पास करो चल जाएगा. तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मेथड को बना दिया मैंने जेनरिक. अगर ये नहीं लिखते हो तो भी चल जाएगा, यहाँ पर x की जगह पर कुछ भी y है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखते तो वो भी तरीका है. लेकिन मैंने यहाँ पर मेथड को कैसे बना दिया, जेनरिक, 100 स्ट्रिंग ट्रू. अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, एक और बात. अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई बस मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, तो मुझे बस चाहिए इसके अंदर इंटीजर्स. तो आप लिख दो इंटीजर्स, डेटा प्रोसेसर इक्वल टू न्यू डेटा प्रोसेसर. अब क्या होने वाला है, अभी बस इसमें क्या जाएगा, इंटीजर ही. अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखता तो क्या हो जाता, कुछ भी पास कर सकता. अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखता तो क्या होता, कोई भी टाइप का डेटा आप भेज सकते हो. एग्जाम्पल अभी ये हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, ऑब्जेक्ट. इससे तो ये चल गया, इससे तो ये चल गया, लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन कुछ है क्या, व्हाट आई वांट, sometime I want only integers, sometime I want only strings, or sometime I want only floats, or sometime I want any type of data. अभी इस केस में what is my requirement, कोई टाइप का डेटा चल जाएगा, इससे हो जाएगा. लेकिन अभी मुझे मेक श्योर करना है इसमें बस इंटीजर जाना चाहिए. क्या करोगे फिर, अभी मेरा पहला रिक्वायरमेंट था, इट शुड एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ डेटा. फर्स्ट रिक्वायरमेंट, एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ डेटा, एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ डेटा. दूसरा क्या है आपके पास, स्पेसिफिक टाइप, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा. क्या करोगे आप, ये तो अभी नहीं चलेगा, तो फेल हो जाएगा अभी. अगर मैं चाहता मुझे बस क्या चाहिए, कौन सा डेटा, इंटीजर चाहिए, आई वांट ओनली इंटीजर्स, कंपलसरी मुझे इंटीजर ही चाहिए. लेकिन आप कुछ भी भेज सकते हो ना, आप क्या भेज सकते हो, कुछ भी जो चाहिए वो भेज सकते हो. बट व्हाट आई वांट टू हैव रिस्ट्रिक्शन. अगर मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर अभी इस टाइम मुझे क्या है, इस पर्टिकुलर टाइप में मुझे बस इंटीजर चाहिए, वो नहीं कर सकते. इसलिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक्स. एक्स का मतलब होता है अभी आप स्पेसिफाई, अभी टाइप स्पेसिफाई नहीं किया, इट इज जेनरिक्स इज अ कॉन्सेप्ट. अभी जो मैं देख रहा हूँ क्या बता रहा हूँ, जेनरिक्स कॉन्सेप्ट.
अगर जेनरिक कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो व्हाट यू गेट ए फ्लेक्सिबिलिटी. अब यहाँ पर मैंने टाइप कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, इसका मतलब I can accept any type of data. Now I have specified the type here. If I specify a type here, integer, तो आप integer ही भेजोगे बस. So this is what you get as a type safety. Generics concept का यूज करके आपको क्या मिलता है? Type safety. अब next time मुझे क्या चाहिए बस string चाहिए बस. ये बन गया आपका string. Strings only. String data processor equal new string data processor. और यहाँ पर भेज दो आप string data processor dot process. इसमें क्या आ जाएगा बस strings XYZ, है ना, बढ़िया चीज. जैसा डेटा चाहिए वैसा भेजो. So this generics concept was introduced in Java 1.5. इसका यूज करके क्या होता है? We get a type safety. We get a type safety and we get a control what type of data you want to send. कभी इंटीजर चाहिए इंटीजर भेजो, कभी स्ट्रिंग चाहिए कब स्ट्रिंग भेजो, राइट, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट. राइट, सिंपल है, चल रहा है सही से. तो यूजिंग जेनरिक्स कॉन्सेप्ट व्हाट वी कैन डू, वी कैन इजीली, पहले क्या देखा था हमने, enum. व्हाट इज enum? It is a type of a class which contains set of constant values. That's it. और फिर हम देख रहे हैं अभी generic concept. So it is a concept. कब आया ये? It is a concept introduced in Java 5 version. Using generics, we can make the classes and methods generic and achieve type safety. Simple. So how to make any class as a type safe? Type safety मतलब सेम टाइप का डेटा जाएगा उसमें. अगर इंटीजर चाहिए तो इंटीजर मिलेगा, स्ट्रिंग चाहिए तो स्ट्रिंग. सिंपल. तो यहाँ पर हमने कुछ प्रेडिकेट वगैरह देखे थे. इफ यू सी केयरफुली, प्रेडिकेट वगैरह. तो मैं अभी एक इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूँ, प्रेडिकेट मेरा खुद का. predicate, ठीक है. Now I'm going to write a method boolean test, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी टाइप का डेटा इसमें मिले. इनपुट कोई भी टाइप का हो सकता है. इनपुट कैन बी ऑफ टाइप एनी. तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ x, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x. ठीक. नाउ ये कौन सा इंटरफेस है? अरे फंक्शनल इंटरफेस है. इट इज अ फंक्शनल इंटरफेस. तो प्रेडिकेट इनपुट, और मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा. तो अभी मुझे चाहिए बस इंटीजर. क्या चाहिए इसके अंदर? इंटीजर. अगर मेरा जो इनपुट है इंटीजर है तो मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा अगर इंटीजर है. तो यहाँ पर क्या चेक कर सकता हूँ मैं? इफ इंटीजर द इनपुट mod 2 इक्वल टू 0. क्या चेक करेंगे हम? सिंपल सा. अगर जो भी इनपुट इंटीजर है अगर वो इवन नंबर है तो हम बोलेंगे इट्स इवन नंबर. प्रेडिकेट डॉट टेस्ट 100. तो यहाँ पर रिटर्न क्या होगा? ट्रू. अगर यहाँ पर इनपुट देंगे 155 तो आएगा आपका फॉल्स. सिंपल. अब मैं दूसरा प्रेडिकेट लिखता हूँ मेरा खुद का. लेट्स से स्ट्रिंग प्रेडिकेट इक्वल टू इनपुट क्या रहेगा आपका? स्ट्रिंग.
अब मेरा स्ट्रिंग अगर स्टार्ट होता है, अगर आपका इनपुट स्ट्रिंग स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स विथ जो भी इनपुट है स्ट्रिंग टाइप का, स्टार्ट्स विथ ए है तो रिटर्न करेंगे हम ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. सो स्ट्रिंग प्रेडिकेट, आई होप यू नो दिस राइट, प्रेडिकेट वगैरह ये सब. स्ट्रिंग प्रेडिकेट डॉट टेस्ट, यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ लेट से अदनान. अगर अदनान से नाम ए स्टार्ट हो रहा है स्ट्रिंग, देन इट रिटर्न ट्रू. अगर यहाँ पर दूसरा देंगे लेट से ओंकार, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स. सिंपल. ये देगा आपको ट्रू और ये देगा आपको फॉल्स. तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो. सो यू गेट अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इफ यू आर यूजिंग विद द generics. So generics are used to specify the type to achieve the type safety, to make the methods generics. सिंपल है? नहीं सिंपल क्यों? थोड़ा हाँ भी. अरे इसको मैंने क्या कर दिया, इसको टाइप बोल दिया, एक्स बोलो, इसको कुछ भी नाम दे सकते हो आप, एक्स वाई जेड कुछ भी, तो इसको एक्स. मतलब जेनरिक बना दिया आपने, कोई भी टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर सकता है ये. अगर आप चाहते हो कि मुझे बस इंटीजर चाहिए तो इंटीजर ले लेगा, कभी चाहते हो स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग ले लेगा. अब दो इनपुट के लिए करते हैं हम. आई विल जस्ट क्रिएट फॉर, कहाँ पर किए, दो इनपुट के लिए करते हैं हम. कोई नंबर प्रोसेसर करते हैं, या कोई बाई प्रेडिकेट करता हूँ. मैं क्या करता हूँ, बाई प्रेडिकेट. x, y, x, y, मतलब दो इनपुट रहने वाले मेरे पास. तो यहाँ पर मेथड है मेरा बूलियन टेस्ट, और यहाँ पर इनपुट रहेगा एक इनपुट 1, y, इनपुट 2. तो दोनों का टाइप भी कुछ भी दे सकते हैं अभी, इट इज अप टू यू. तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ बाई प्रेडिकेट इक्वल टू, अभी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं. इम्प्लीमेंट कर मुझे दो इनपुट देना है, इनपुट 1, इनपुट 2. रिटर्न क्या करेंगे हम, सी हियर, क्या हम दे रहे हैं इनपुट 1, इनपुट 2, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें. रिटर्न हम करेंगे, अगर रिटर्न दोनों इक्वल है तो रिटर्न करेंगे हम ट्रू. इनपुट 1 इक्वल टू इनपुट 2, तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू. दोनों इनपुट इक्वल है तो रिटर्न करेंगे ट्रू. चलो देखते हैं इसको. बाई प्रेडिकेट डॉट टेस्ट, और यहाँ पर मैं दोनों इनपुट दे रहा हूँ 100, 100. क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स क्यों देगा, 100, 100 इसको इनपुट दिया, दोनों इक्वल है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. ट्रू. अब मैं चाहता हूँ कि मुझे बस स्ट्रिंग्स देना इनपुट, दोनों भी स्ट्रिंग, एक इंटीजर हो सकता है, दो स्ट्रिंग, तो मैं आप कंफर्म कर सकते हैं वैसे. सो बाय प्रेडिकेट मुझे चाहिए दोनों भी स्ट्रिंग्स. क्या चाहिए, दोनों भी स्ट्रिंग्स. तो आपके एक्सेप्ट करेगा बस str1, str2. अगर दोनों इक्वल है str1 डॉट इक्वल्स, क्या हुआ, नाम नहीं दिया हमने, डॉट इक्वल्स इग्नोर केस str2. अगर दोनों इक्वल है तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू, अदरवाइज स्ट्रिंग बाय प्रेडिकेट टेस्ट. मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दिया abc और दूसरा दिया abc. दोनों इक्वल है क्या, इफ यू इग्नोर द केस, यस दे आर इक्वल, तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स.
ठीक, चलो परफेक्ट।